Hello everyone, good afternoon. So happy to be back on my Facebook Live, and the drug that we are going to discuss today is Hamamelis. It's not been that oftenly used in our practice, and it has been used for physical complaints mostly, but believe me, it is a very, very useful drug. If we understand the mind of Hamamelis, you will be benefited a lot. You can see it in children and adults and especially old age people. I have given it to many of my patients. So the drug that we are going to discuss is Hamamelis. Okay, we'll wait for 2 minutes till the people join. We recently have a webinar and I had shared a case of Hamamelis and with video follow-ups, and it has responded beautifully. And then I studied Hamamelis in various aspects and how we can understand the journey of Hamamelis. Two important things when we sharing this journey, why I am telling this beforehand, because I shared a case of COVID in my webinar and someone told me कि I had given that person Veratrum, and a learner asked me कि आपने तो बोला है कि Veratrum बहुत extravagant होता है, show off करता है, पर ये patient तो नहीं कर रहा है, ये तो decently बात कर रहा है. तो ये जो pictures हम बना रहे हैं, they are not, most of the people would behave that way, but that doesn't say that if the person is not behaving extravagant or showy, that person will not cannot be Veratrum. It can be. Any remedy, when we study in totality, can be seen in various aspects, and from various entries you can enter that remedy, right? So we make these images so it becomes easier for us, but don't get stuck in these images. Both of this is important, the study of rubric and the Materia Medica, matlab the repertory and the Materia Medica image. Sometimes you give a remedy. For example, today only I took a case of allergic rhinitis, and after taking the rubrics, the remedy that was coming was lycopodium. But if I, what is the typical picture of lycopodium? Hard for inferiors, kind for superiors, dictatorial. She was nothing like that, nothing. But still, the full totality matched lycopodium. So you should go ahead with that drug, So both the study is important, the study of rubrics and the study of Materia Medica images, right? But don't get stuck in these images. I wanted to say this I wanted to put this point forth because a lot of people asked me कि Veratrum तो आपने ऐसे सिखाया है, फिर ऐसे कैसे दे दिया? ऐसा नहीं है, ये कोई 100% रूल नहीं है कि Veratrum ऐसा ही होगा. Okay, now coming to the remedy that we are going to discuss today is Hamamelis, I said. So Hamamelis के बारे में आप लोग को कितना पता है आप लिखिए, and तब तक I will also tell what I have understood, and then probably we can take the questions on Hamamelis. So Hamamelis is one person who's a very sensitive person, sensitive to reprimands, sensitive to reproaches, कोई डांटे, कोई blame करे, कोई या उनको नीचा देखे, या despised, they feel that people are looking down upon me, is not giving me due respect. This word due respect is very, very important in this. I will explain why it is important. So Hamamelis को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि he is a great person. He is a great person in the sense not like Platina, but he feels that he's great and he should be respected. He should be given that due respect. Right? So ailments from not being appreciated, ailments from reprimand, reproaches, admonition aggravates, scorned being, looked down upon, despised being, all this कि आप उनको नीचा दिखाएं या उनको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट ना दें, ये Hamamelis का बेसिक कोर है कि मेरी जो डिजर्विंग रिस्पेक्ट है वो मुझे मिलनी चाहिए. अब आपको क्लिनिक में कैसे दिखते हैं मैं बच्चों में भी समझाऊंगी आपको, पर मैंने मोस्ट कॉमनली Hamamelis ओल्ड एज पीपल में बहुत ज़्यादा दी है, क्योंकि क्या हो जाता है जैसे कि आजकल के बच्चे देख लो, रिस्पेक्ट ही नहीं है, कुछ पूछना ही नहीं होता है उनको कि भैया पूछ लें, अपने आप ही करते रहते हैं. कुछ ला रहे हैं, कुछ नया सामान ला रहे हैं, या हमने कुछ बोला या हमारा कोई ओपिनियन हुआ कि भैया ऐसा मत करो या अभी मत जाओ होटल, कोरोना चल रहा है, उनको कोई मतलब ही नहीं.
उनको कोई बात का महत्व ही नहीं है, हमारी बात का कोई वजूद ही नहीं है. तो what is this? This person wants कि whatever he is saying, whatever is his opinions, whatever are his his point of view, it should be given the due credit. So it should be respected. He should be respected. His opinions should be respected, and he should be given the due credit of whatever he is talking. He should not be behaved as if अच्छा ठीक है बोल रहे हैं. तो फिर उनको क्या लगने लगता है कि they are neglected. They do not belong to anybody. They are alone. Forsaken feeling, isolation sensation of मतलब I am alone. मेरा कोई नहीं है. आई डोंट बिलोंग टू एनीबडी एंड नोबडी रिस्पेक्ट्स मी. कई बार आपको डायरेक्ट पेशेंट बोलता है कि यार कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है घर में, और कई बार वो जो कंप्लेन कर रहा होता है आपसे, वट एवर हिज वर्ड्स, द स्टाइल ही इज टेकिंग, वट इज द पॉइंट ही इज ट्राइंग टू मेक, फ्रॉम दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ही वॉन्ट्स हिज रिस्पेक्ट, दैट ही डिजर्व्स, राइट. मैंने जैसे आपको ये वर्ड्स बोल रही हूँ ना, ड्यू रिस्पेक्ट, दैट ही डिजर्व्स, या फिर ये जो वर्ड्स हैं ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज हैमरमिलिस को फ्लैटरी नहीं चाहिए. If you see all the rubrics, Hamamelis is absent in flattering and flattered desire to be, longing for that appreciation. He want his due. He feel that एक रूब्रिक है उसका अर्नड करके, कि वट एवर रिस्पेक्ट ही हैज अर्नड इज मेरा कमाया हुआ, ये मेरी कमाई हुई रिस्पेक्ट है जो मैं आज मांग रहा हूँ और जो मुझे लगता है कि मुझे मिलनी चाहिए एज अ पर्सन. सो दैट इज द कोर ऑफ Hamamelis. Whatever is my due respect, whatever the respect that I have earned, I should get. तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आप लोगों को कि घर के बड़े बोलते हैं कि यार हमारी तो बात की कोई वैल्यू ही नहीं है. ऐसी सेम वे से एक बच्ची आई थी मेरे पास विद द कंप्लेंट ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस आई थिंक, और एक्ने कुछ तो था. इट्स अ लॉन्ग बैक. तो बच्चों में कैसे था, शी सेड आई और कुछ बता रही थी, फिर मामा स्टार्टेड कंप्लेनिंग कि यार ये तो एक्ने थे शायद, हाँ, तो ये तो मुंह नहीं धोती है, शी डजंट टेक केयर, शी इज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली. शी इज लाइक, शी गॉट रियली इरिटेटेड कि क्या है, बोले कि उसका छोटा भाई था तो सर वो डिस्टर्ब करता रहता है एंड कुछ, और मैं जो भी बोलती हूँ वो किसी को मानना ही नहीं होता. वो थोड़ी बड़ी थी, तो व्हाट शी वाज एक्सपेक्टिंग इज मैं जो बोल रही हूँ उस बात को कोई वैल्यू तो दो, राइट. तो उस बात की कोई वैल्यू तो रखो. तो she as a girl of 14-15 years, she wanted her opinions to be respected. कि आप उसके सामने मेरे को ऐसे बोले जा रहे हो, तो she feel कि she's been looked down upon, neglected, मेरे को ब्लेम करते रहते हो, रिप्रोचेस, और मेरी बात की कोई महत्व ही नहीं है, मैं जो बोल रही हूँ कोई सुनता ही नहीं है. तो इस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन था. तो इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट is bothering the person, whether it's a child or an adult or an old man, what is bothering that person. तो उस बच्ची में what was bothering her कि यार आप उसकी सुनते रहते हो, मेरी तो बात का कोई महत्व ही नहीं है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरा जो ओपिनियन होता है वो कोई मानता ही नहीं है. और so I had treated her with Hamamelis and she responded beautifully. And one example I gave you of an old man and how he was talking. Now we understand Hamamelis कि Hamamelis में एक रूब्रिक है, सैडनेस स्लाइट फ्रॉम एन अनडिजर्व्ड. सैडनेस मतलब दुखी होना. मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, ईच एंड एवरी वर्ड मीनिंग आप उसको समझने की कोशिश करिए. स्लाइट इज व्हेन यू लुक इंफीरियर, लुक डाउन. फ्रॉम एन अनडिजर्व्ड मतलब कोई भी ऐसी बात जहां मुझे नीचा देखा गया हो या मेरी बात को महत्व नहीं दिया, एंड आई डोंट डिजर्व इट. सी दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन? बिकॉज ही इज नॉट डिमांडिंग समथिंग विच ही डजंट डिजर्व इट. ऐसा नहीं है कि विरेट्रम की तरह डर्टी प्रिंस है या लाइकोक की तरह डिक्टेटोरियल है या कोई और डिमांड कर रहा है, या पलेडियम की तरह लॉन्गिंग फॉर अप्रिसिएशन है. उसका जो डिमांड है या उसका जो इंडिग्नेशन है वो इसी बात से है. या सैडनेस, जो मैं ये रूब्रिक आपको समझा रही हूँ, सैडनेस स्लाइट फ्रॉम एन अनडिजर्व्ड मतलब कोई भी ऐसी बात
जिसमें मुझे नीचा, स्लाइट इज इंफीरियर, लुक डाउन अपॉन, अनडिजर्व्ड मुझे अगर मिले तो उससे दे गो इन अ स्टेट ऑफ सैडनेस, राइट. आई हैड शेयर्ड अ केस वेयर same situation was there where his kids were said something to this patient, and he felt very mortified and he felt that they are looking down upon him, and उन्होंने blame किया है मेरे को उस चीज के लिए जो मैं करता ही नहीं हूँ. Right, I cannot show video cases on Facebook, but that is why we are taking regular webinars so that you all can attend. So and दूसरा एक important rubric of Hamamelis is conversation desire for sublime. Conversation desire for sublime. हमने बचपन में sublimation पढ़ा है, where a solid is turned into a gas without changing into a state of liquid. तो solid जैसे camphor होता है, कपूर होता है, तो अगर उसको कपूर को जलाएं तो वो liquid नहीं बनता, वो gas बन जाता है, तो वो heavenly, it goes to a more heavenly state. राइट. तो हेमामिलिस के बच्चे या बड़े, ये आप बच्चा अगर क्लिनिक में हो और मम्मी उनकी बुराई कर रही हो ना, तो दे डोंट लाइक इट, दे डोंट लाइक इट. उनको कैसा कॉन्वर्सेशन चाहिए? सबलाइम. उनकी तारीफ से, मतलब उनकी जो बुराई भी है वो इस तरीके से की जाए कि वो एक पॉजिटिव साइड हो, फ्लैटरी नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इज वाई वेरी वेरी फाइनली आई एम सेइंग कि डिजर्विंग होनी चाहिए, अर्न रिस्पेक्ट होनी चाहिए. Right, so they want a conversation मतलब when two people talk, desire मतलब इच्छा मेरी for sublime, so they want conversation where people give them that due respect कि हाँ भाई आपने तो बहुत किया, उनको अच्छा लगता है वैसा conversation, right. फिर एक rubric है tranquility, hemorrhages and hemoptysis in. So what are hemorrhages? See, these are metamorphical meanings, right? जैसे बहुत सारे delirium के, delusion के rubrics हैं, वैसे ही हमें ये rubrics एक तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं कि यूट्राइन हेमोरेजेस हो रहे हैं, मेनोरेजिया है और फिर भी पेशेंट ट्रैंक्विलिटी में है, या फिर सेकंड तरीका क्या होता है, उनका मेटामॉर्फिकल अंडरस्टैंडिंग हमको समझना पड़ता है. तो इस रूब्रिक का मेटामॉर्फिकल अंडरस्टैंडिंग ये है कि ट्रैंक्विलिटी इज अ स्टेट ऑफ पीस, and hemorrhage is a uterine hemorrhage or a rectal hemorrhage. तो hemorrhage में normally क्या बोलते हैं, जैसे कि गंदा blood हमारा निकल जाता है, when you get chums or you get periods, आपका गंदा blood निकल रहा है. तो यहाँ पे क्या बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि tranquility मतलब peace में है patient, जब उससे जो लोग उसके साथ उसको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे रहे और जो उसकी ड्यू बातें नहीं मान रहे, वो डिजर्विंग जो है बंदा उसका नहीं कर रहे, और वो लोग जब इससे दूर जाते हैं इस पेशेंट से, तो उसको पीस का फीलिंग आता है. मतलब ही इज इन अ स्टेट ऑफ पीस, उसको शांति मिलती है कि भैया ये लोग जो हैं ये मेरी कीमत समझ नहीं रहे हैं, ये मेरे को मेरा रिस्पेक्ट दे नहीं रहे हैं, और ठीक है ये मेरे से दूर भी चले जाएं तो इट्स ओके. So that is why these patient goes in aversion to family members of. आपको ये समझना पड़ेगा कि इस रेमेडी में aversion to family members कब आता है और बाकी रेमेडीज में aversion to family members कब आता है. They also go to indifference to loved ones, indifference to the welfare of others, indifference to family. But it is that this indifference and the cause of this indifference is very very different from the indifference of CPR or any other remedy. Are you understanding? So ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा indifference है तो चलो CPI होगा. You have to understand why this person has gone into indifference. So why Hamamelis will go into indifference? Because they have not got their due respect. जो मेरा हक है, जो मेरी बेसिक रिस्पेक्ट है वो मुझे मिलनी चाहिए, इसलिए उनको इंडिग्नेशन भी है, मॉर्टिफिकेशन भी है, बट एक्सप्रेशन डिफरेंट है. अगर आप स्टैफिस एग्रिया पढ़ेंगे, इट कम्स क्लोज टू स्टैफिस, बट अगर आप स्टैफिस एग्रिया पढ़ेंगे, सो देर आर लॉट ऑफ रूब्रिक्स ऑन एंगर, इंडिग्नेशन, वेक्सेशन, सप्रेस्ड एंगर, lot of rubrics like that. But अगर आप Hamamelis पढ़ेंगे तो there are lot of rubrics of sadness and tranquility, hemorrhages with, या उनको वो दूर लोग जाएं, स्टैफिस का वो स्ट्रगल ही नहीं है. सो द बेसिक जर्नी इज डिफरेंट, राइट. सो इन द सेम वे वी हैव टू स्टडी वेरियस रेमेडीज. सो
कॉमनली प्रैक्टिस में हमें कैसे दिखता है कि इन लोगों को अटेंशन चाहिए. जैसे बूढ़े लोग होते हैं ना, मैंने बोला मैंने बहुत सारे बूढ़े लोगों को ये दवाई दी है, उनको अटेंशन चाहिए. सो व्हाट दे विल डू टू गेट अटेंशन, दे विल कंप्लेन अबाउट द डिजीज और लेमेंट अबाउट द डिजीज. अगेन you should know the difference between complaining and lamenting. मैं यहाँ पे समझाती हूँ ताकि आप भी आगे चल के एंगर, इंडिग्नेशन, इरिटेबिलिटी, वेक्सेशन, मॉर्टिफिकेशन, इन सब में डिफरेंस समझ सकें. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके यहाँ पे समझाती हूँ कि कंप्लेनिंग होता है व्हेन यू कंप्लेन टू समवन हु कैन हेल्प यू, राइट. फॉर एग्जाम्पल, आई गो एंड कंप्लेन टू द टीचर that you know this child is troubling me. बच्चे जाते हैं ना टीचर के पास कि मैम ये बच्चा मेरे को ट्रबल कर रहा है, तो वो कंप्लेनिंग है. पर अगर वही बच्चा क्लासरूम में बैठ के ठुनठुनाता रहे, यार तुम लोग मेरे को बहुत तंग करते हो, मेरे को तो सब तंग ही करते रहते हैं, मेरा तो कोई ध्यान ही नहीं रख रहा है, सब मेरे को तंग कर रहे हैं, तो दिस इज लेमेंटिंग. लेमेंट करना, गाना गाना, कंप्लेन, ऐसी जगह कंप्लेन करना जहां आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला. लोग पॉलिटिक्स पे करते हैं ना, क्या सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, रास्ते भी कैसे हो रखे हैं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है. या डॉक्टर्स पे, क्या आजकल के डॉक्टर्स हैं, या आजकल की क्या स्थिति है, लोग कचरा फेंक देते हैं. आप क्या कर रहे हैं? या आप किसी अथॉरिटी पे जाके कंप्लेन कर रहे हैं क्या? अगर मुझे कचरे से प्रॉब्लम है तो मैं म्यूनिसिपैलिटी में या वहाँ का जो भी है उससे जाके कंप्लेन करूंगी तो वो कंप्लेनिंग होगा, और मैं अपना गाना या रोना गाती रहूंगी तो वो लेमेंटिंग होगा, राइट. इन द सेम वे यू हैव टू डिफरेंशिएट वेरियस वर्ड्स इन आवर रिपोर्टरी. फॉर मॉर्टिफिकेशन क्या है या वेक्सेशन क्या है, ऐसे आपको आई कैन एक्सप्लेन यू, बट देन इट विल गो ऑन एंड ऑन. सो ये पेशेंट अटेंशन के लिए लेमेंट करेगा, कंप्लेन करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि यार आई एम निग्लेक्टेड, मेरे पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है. जैसे मैंने आपको पूरी सारी फीलिंग्स बताई, इसी स्टेट में मोस्टली हैमोमिलिस आपको आएगा. एक रूब्रिक है डिल्यूजन, डिसॉल्विंग ही इज. व्हाट इज डिसॉल्विंग? जब आप शक्कर एक ग्लास पानी में मिलाते हैं तो शक्कर गायब हो जाती है, पानी ही रह जाता है, तो जो शक्कर का अपना अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है. तो ये पेशेंट को क्या लगता है कि मेरी जो महत्व है इस घर में, या मेरा जो अस्तित्व है, या मेरी जो स्टैंडिंग है इन दिस हाउस, इट इज गोइंग. There is nobody who is respecting me. There is no people are looking down upon me. People are not giving me that respect. मेरी जो बात है उसका कोई वजूद नहीं है इस घर में. So I am dissolving. That I think is a singular of Hamamelis. Okay. So this is and they go into despair, criticism from smallest. उनको थोड़ा भी criticize करो या तो they go into state of hopelessness, you know. Okay. हाँ, तो ये जो पर्सन है ये दूसरों को भी रिस्पेक्ट देता है. इट इज इन अ रूब्रिक रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम. तो वो दूसरे को भी रिस्पेक्ट देगा, मतलब वो ऐसा नहीं कि खुद बदतमीजी से बात कर रहा है और चाहता रिस्पेक्ट है. तो सब कुछ जो ये हैमोमिलिस कर रहा है ना, वो उसका हक है, ऐसा उसे लगता है कि ये मैं डिजर्व करता हूँ. सो वो दूसरों को रिस्पेक्ट करता है और खुद भी रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करता है, राइट. और यही उसका एलिमेंट है, यही उसका दुख है, यही उसकी कंप्लेन है, यही चीज उसको बॉदर कर रही है, राइट. So they are very sensitive to reprimands, reproaches, rudeness, sympathy from others, desire for. Sympathy क्या होती है? तरस खाना. एम्पथी और सिंपथी में अंतर है. बहुत सारे लोगों को सिंपथी नहीं अच्छी लगती. फॉर एग्जाम्पल नैट्रोम्यूर, दे डोंट वांट टू बी पिटीड, यू नो, बट हैमोमिलिस को सिंपथी अच्छी लगती है. सो सिंपथी फ्रॉम अदर्स. एम्पथी क्या होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल my friend had lost someone in her family and I can feel her pain, you know, I can understand what you've gone through. This is empathy. You can empathize, you can feel the same pain that other person is going through. And sympathy is when I say yaar bichari, you know, uske papa ki death ho gayi, bichari. When I say bichari, this is sympathy, this is taras khana. जब मैं दूसरे पे, तो हैमोमिलिस को चलता है कि उस पे लोग तरस खाएं क्योंकि उसको उसका अटेंशन मिलेगा ना, राइट. आई जस्ट चेक इफ एनीथिंग इज मिसिंग. या सो नाउ लास्ट टू rubrics that I'm going to explain and then you can put your questions.
There is one rubric, sadness, masturbation from, and sadness pollutions from. So we all know what is masturbation pollution and how it is used in our repertory, but they are unusual way of or methods of sexual gratification. This also shows that they don't like unusual ways of gratifying themselves, in the sense they want genuine exact ways of gratifying. So they don't want flattery or चापलूसी या आप उनके वाहवाही करें, ये उनको नहीं चाहिए. जो वो डिजर्व करते हैं, जो उनका हक है, वो रिस्पेक्ट उनको चाहिए. Okay, so yeah, this is a short study on Hamamelis. It comes very close to Staphylos, and sometimes you can see natrum or drugs like ignitia also, and yes, so such drugs come close. So you have to understand what is bothering him and what is the core, and how that indignation of Staphylos is different from Hamamelis. And believe me, if you give the exact drug what the patient needs, the result is amazing. वो rheumatoid arthritis हो या कुछ भी बीमारी हो, obviously structural changes और वो सब time लगता है. But if the drug that you give is similar, not similar, then the results are absolutely amazing. You know, there is no doubt. It's very fast. And so we'll take quick questions now. And I also wanted to announce and say thank you for all last webinar that I took in December for 3 days, where we took psychiatric cases and COVID cases and approach to acute diseases. It was amazing. I was really touched, and I was so happy, you know, to see so many people wanting to attend the webinars, and so many people, you know, excited for the webinar, and so many registrations. We were all full. We had the amount of seats were completely packed, and so many people were not able to attend because the seats were full. Now in January, I am planning once in a week webinar, say for 4 weeks, where I'm planning that in two, probably every Friday 3 to 5 or 9 to 11, something, we'll work it out. And we are planning that we'll in 2 weeks, for the 2 days, we'll take cases of old people, because I feel old age is the second childhood. You know, their demands are same like children. The understanding और जो उनकी जिद हो जाती है, जो अटेंशन सीकिंग की मैं बात कर रही हूँ, वो एक ओल्ड एज में भी हमें दिखती है, जो बच्चों में दिखती है. एंड 2 हम पीडियाट्रिक केसेस लेंगे, एंड उनकी रेमेडीज डिटेल में, और कुछ और केसेस उसके लेंगे. So I have not yet decided on dates and date, but I just wanted to announce now, because we'll be taking 4 days, once a week webinar kind of a thing in January. Yeah. So once we'll finalize, I'll put it on my Facebook page and my WhatsApp group for people who have attended my webinars. So yes, if anybody has any question, we can quickly take the questions on Hamamelis. If you have some experience on prescribing Hamamelis, you can also share that. My only thing over here is that whoever wants to put a case, or put something, it should be through mind. I strongly discourage people who practice by कि acne सर पे आता है तो ये है, with no offense to anybody, due respect to everybody, but I feel होम्योपैथी को हम एलोपैथी की तरफ से ना देखें. होम्योपैथी is more deep, और उसको हम सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और कॉम्बिनेशंस ना देंगे, तो वरना वो होम्योपैथी और एलोपैथी में फ़र्क ही नहीं रह जाएगा, और आप उसको एक एलोपैथिक की तरह ही बना के छोड़ देंगे. So the idea is that we all learn exact homeopathy, what is the true meaning of giving a similimum, and practice ekdam genuinely. A kid trying to cry every time for nothing always becomes sad even on nothing, and also put a lot of demands. So what we can prescribe and how can we treat? Hanif Raza. This is a very general question, not related to Hamamelis, but still I try to... So probably ये जो बच्चे की आप बात कर रहे हैं कि रोता है किसी बिना बात के, सो उसको प्रॉब्ली खुद नहीं पता कि उसको क्या चाहिए. बहुत सारी डिमांड्स प्रिस्क्राइब करता है, डिमांड्स देता है, और फिर भी उसको वो नहीं. सो देयर इज अ रूब्रिक्स, कैप्रिशियसनेस, रिजेक्टिंग द थिंग्स व्हेन ऑफर्ड.
शायद यू कैन पुट दैट रूब्रिक इन दिस केस कि क्या चाहिए एग्जैक्टली पता नहीं और जवाब वो दे रहे हैं तो भी रो रहा है, राइट? थैंक यू पल्लवी. Dr. Anudeep, I just explained sadness pollution from. Pollution is night falls, where you all know about it. Sadness pollution from, एक तो exact आप ले सकते हैं कि because of the pollution that the person is suffering, night falls, he is going into sadness. या फिर आप ऐसे ले सकते हैं कि it is an unnatural way of gratification, of sexual gratification, which a person doesn't want, and he wants a normal way, which is a normal sexual intercourse. So these people doesn't want, इसका जो metamorphical explanation है वो ये है कि these people doesn't want unnatural flattery and chapalusi and वाह भाई, they want that basic due respect that they deserved. Okay, so ये इसका metamorphical meaning है. Hamamelis and Staphylococcus aureus के जैसे मैंने बताया सेजल, the journey is absolutely different. Staphylococcus aureus का कोर ही, जैसे Hamamelis का कोर मैंने आप अगर एक वर्ड में समझाएं तो मैंने बोला बेसिक ड्यू रिस्पेक्ट उसको चाहिए. और अगर मैं Staphylococcus aureus का कोर एक वर्ड में लूं तो मैं बोलूंगी इंडिग्नेशन, वो उसका कोर है. एंड सप्रेस्ड एंगर, यू नो, कि मेरे साथ गलत हुआ, वो गलत कुछ भी हो सकता है, उसमें रिस्पेक्ट की बात नहीं आती है. और उसके ऊपर जो मेरा गुस्सा है वो सही है. इंडिग्नेशन इज राइटियस एंगर. ओके, सो उनका जो कोर है, उनका जो रिएक्शन है, जैसे एंगर मैंने बताया स्टैफिस को बहुत सप्रेस्ड एंगर रहता है या वो सफ़र करते हैं. केंट ने लिखा है ना कि जैसे सपोज किसी का किसी से झगड़ा हो जाए तो वहाँ तो कुछ नहीं बोलेगा, है ना, पर घर जाके उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फीवर हो सकता है, right? So such things are Staphylococcus aureus. Arsenic also needs respect. He says मेरा परिवार अब मेरी ना सुनता, अब सब बदल गए हैं. So how ma'am can we differentiate these two? देखो, एक एक वर्ड पे जो लोग रूब्रिक बनाते हैं और टोटलिटी को समझने की कोशिश करते हैं ना, मेरे को थोड़ा सा उन चीज़ों से प्रॉब्लम है. आप एक लाइन पे आपको समझना पड़ेगा आर्सेनिक क्या है ना. ऐसा तो होता नहीं है कि क्लिनिक पे पेशेंट आया, उसने एक लाइन बोली और आप दवाई दे दो. वो पेशेंट कैसे बोल रहा है, उसका क्या डिमांड है. आर्सेनिक का क्लेनलीनेस, फस्टिडियसनेस, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, ग्रीडीनेस, आर्सेनिक का केयर फॉर फैमिली, कुछ तो टोटलिटी होगी ना. आपने देखा इसमें एक भी रूब्रिक है केयर्स फॉर चिल्ड्रन और यू नो नहीं है. सो व्हेन वी स्टडी अ रेमेडी, डोंट डिफरेंशिएट कि भाई ये इसको रिस्पेक्ट चाहिए और आर्सेनिक भी चाह रहा है कि सब उसके, तो कैसे डिफरेंट. अब पूरी जर्नी डिफरेंट है ना. समझ रहा है श्वेता? डिफरेंस बिटवीन डिल्यूजन वर्थलेस एंड सैडनेस स्लाइट फ्रॉम एन अनडिजर्व्ड. मैंने समझाया ना, डिल्यूजन वर्थलेस क्या होता है, बहुत डिफरेंट है, एकदम अलग रूब्रिक है. डिल्यूजन वर्थलेस, वर्थ क्या होता है, हम बोलते हैं ना यार आज हम 5 स्टार में खा के आई मैं मैरियट में, पर यार 4,000 का बिल दिया पर वर्थ नहीं था. वर्थ क्या होता है, जितना हम स्पेंड कर रहे हैं उतनी ही आपको वो मिले, उसकी वैल्यू मिले, राइट. तो मैंने ये डायमंड खरीदा, यार ये इतना वर्थ है कि 50,000 रुपये खर्चा करने का. सो दैट इज ये, कुछ भी आप वर्थ चेक करते हैं. तो वर्थलेस मतलब वर्थ नहीं रही. डिल्यूशन मतलब मेरा ऐसा समझ है या मेरी ऐसी समझ है या मेरे अंदर ऐसा बैठ गया है. तो वर्थलेस ई हिज क्या होता है कि मेरी अब कोई वर्थ नहीं है यार, मेरा कोई, आई एम वर्थलेस, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ भी चीज़ ठीक पे नहीं कर पाता. दिस इज डिल्यूजन वर्थलेस. एंड व्हाट इज सैडनेस, अलग ही हुआ ना. जिसने क्वेश्चन पूछा था अनुदीप, सैडनेस स्लाइट फ्रॉम एन अनडिजर्व्ड. यहाँ तो सैडनेस है, दुख है. स्लाइट जब कोई मुझे इन्फीरियर देखता है और जो चीज़ मैं डिजर्व नहीं करता, यार मैं डिजर्व थोड़ा करता हूँ. मैं अभी जो मैंने शेयर किया था एक केस, वो पेशेंट बोल रहा था यार मैं कोई गंदा इंसान थोड़ी ना हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, राइट. फिर वाई आर यू ट्रीटिंग मी लाइक दिस, आई डोंट डिजर्व दिस. सो अनडिजर्व्ड, ये दूसरा जो हमारे साथ बिहेव कर रहा है उसकी वजह से हमें सैडनेस आ रही है. और डिल्यूजन जो वर्थलेस है वो खुद की वर्थ के लिए उसको लगने लगा है कि मेरी अब कोई वर्थ नहीं है. ओके, थैंक यू माधुरी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.
Ma'am, when we take case of mothers and ask what is the problem from this complaint, all the mothers have, if I will die or suffer from any disease, so all the moms have worried about this, or how can be different. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है. आप पूछिए पेशेंट से, अलग अलग पेशेंट, हर माँ ये नहीं बोलती कि अगर मैं, पहली बात तो हर किसी को लग नहीं रहा होता है कि मैं मर जाऊंगा, राइट. एक कैंसर का पेशेंट आके भी आपको ऐसे बोल सकता है मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, या मुझे लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा, अरे मैं तो ठीक हो ही जाऊंगा. ये तीनों चीज जो मैंने बोली ये डिफरेंट है और इनके डिफरेंट डिफरेंट रूब्रिक्स है. एक सर्दी का पेशेंट भी आपको आके बोल सकता है मेरे को लग रहा है मैं मर जाऊंगा, राइट. सो ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट बोलता है मैं मर जाऊंगा, पहली बात. दूसरी बात, हर पेशेंट को अपने बच्चों की चिंता होती है, ऐसा भी नहीं है. आप पेशेंट से पूछेंगे अरे आप मर जाओगे तो आपको क्या चिंता है, तो बात अलग है, राइट. फिर तो हर मदर को होगी. पर पेशेंट खुद से अपनी जो चिंता बताता है और बोल रहा है कि यार मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, ये अगर ऑटोमेटिकली पेशेंट के मुंह से आ रहा है, तभी हम एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट या एंजाइटी फ्यूचर ऑफ ऐसे रूब्रिक्स लेते हैं. ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? So thank you everyone. I hope you have understood Hamamelis. I will say time and again one very important thing. आप मेरे videos देखिए या कोई भी और senior physician के देखिए. I'm not that senior. So I've been practicing 15-17 years, but there are many doctors जिनके YouTube पे videos हैं और वो काफी senior हैं और मैं भी उनको देखती हूँ. पर आप सिर्फ वो मत देखिए. आप जो भी देख रहे हैं या जो भी आप, मैंने कई बार देखा है लोग एक ग्रुप में हैं सपोज, और किसी ने बोल दिया कि भैया इसको लेते हैं गिल्ट मुझे मार, या इसको लेते हैं रिस्पेक्ट, जैसे मैंने बोल दिया, और आप फिर वही बस दिमाग में भर लेते हैं. तो फिर क्या होता है, आप मेरी जो समझ है उस रेमेडी की, या मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है फ्रॉम माय प्रैक्टिस और फ्रॉम माय लर्निंग फ्रॉम माय सीनियर्स, आप वहीं तक सीमित रह जाएंगे, राइट. जैसे मुझे हैमामेलिस प्रेजेंट करनी है तो मैं हैमामेलिस खुद पढ़ूंगी, सिर्फ हैमामेलिस के वीडियो 4 ग्रुप में से देखूंगी, नो डाउट अबाउट इट, देखने भी चाहिए. आप मेरा देखिए, किसी और सर का देखिए, बट जो खुद की पढ़ाई है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई हैव सीन पीपल यूजिंग द सेम. मतलब आप मेरी भी बताई हुई चीज में अगर अटक जाएंगे ना तो वो भी फेलियर है. मतलब अगर लोग बोलेंगे कि विरेट्रम ऐसा ही होता है, डॉक्टर रुचि ने सिखाया है, तो वो भी फेलियर है. आप विरेट्रम मैं जो बता रही हूँ उसको समझिए और उसके आगे जाके अपना एक्सपीरियंस उसमें ऐड करिए और बुक से पढ़िए, राइट. देन यू विल लर्न, then that would be your learning and not whatever I am saying is my learning from my practice and from my teachers and with this new YouTube medium. बट जब और बुक्स से या बहुत सारे रूब्रिक्स से या डिक्शनरी से आप पढ़ते हैं और फिर उसका इन्फ्लुएंस निकालते हैं, पर जब आप सिर्फ दूसरे के बताई हुई चीज से आप समझते हैं तो वो जितनी मेरी स्टडी रहेगी ना उतने ही उससे थोड़ा सा कम, क्योंकि ऑब्वियसली मैं हैमामेलिस के अगर मैंने 10 केसेस देखे तो मैंने यहाँ पे 10 नहीं बता पाई हूँ, तो आपकी जो पढ़ाई है वो लिमिटेड रह जाएगी. You will not be given that due credit to that remedy by reading. हर बार आप हेमामेलिस पढ़ेंगे या विरेट्रम पढ़ेंगे या मैं नेक्स्ट टाइम भी विरेट्रम लूँ तो हो सकता है कोई और एस्पेक्ट ऑफ विरेट्रम, बट या हायोसाइमस I had taken. It's a vast remedy. There are so many things of hyoscyamus that I have not spoken in my presentation. तो सिर्फ उस पर मत डिपेंड करिए. ये जो फेसबुक लाइव हम ले रहे हैं, दिस इज जस्ट अ मीडियम टू गिव यू दैट स्टिमुलस टू स्टडी and stimulus to read and stimulus to work hard, and so that we do give good results to homeopathy and we can break the myth कि homeopathy slow acting, homeopathy का आराम नहीं मिलता है और आप सिर्फ डायरिया के लिए विरेट्रम या पाइल्स के लिए हैमामेलिस नहीं यूज करेंगे. यू वुड यूज इट फॉर मच more deeper understanding of any remedy. I told Hamamelis, that is why I am giving an example of Hamamelis. Okay, so thank you all, and I will continue these remedy understanding in my Facebook, and I'm planning to do YouTube live next time on my YouTube channel. So I'll let you know on my Facebook page.
यस, थैंक यू। एंड मैं जनवरी सेमिनार का भी आपको बताऊंगी। द वे आई टोल्ड यू, वील टेक 4 days, 1 day in a week, and we'll take 4 different remedies, and probably we can see small cases of that remedy, and understand that remedy in a deeper perspective. There's nobody, and one more thing that I want to tell you, there's nobody, no doctor on this earth, homeopath, who doesn't have failure. Even I have, you have. So failures are just stepping stone. Don't feel, lot of people say कि आपको कैसे आता है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, या I'm just the beginner. We all are the beginners. To be honest, आप मुझे आज बोलें कि एडमस के बारे में बताइए, तो शायद मैंने 2 पेशेंट को दिया और मुझे उसके 6-7 रूब्रिक याद है। बट जितना डिटेल में एक नाट्रोम्यूर के बारे में बिना पढ़े बोल सकती हूँ, या इग्निशिया के बारे में, उतना मैं उस रेमेडी के बारे में नहीं बोलूँगी, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस मेरा नहीं है। सो आई एम अ लर्नर देयर, सो एवरीबडी इज अ लर्नर, वी ऑल आर लर्निंग, राइट? सो नेवर अंडर एस्टिमेट, डोंट फील यू आर वर्थलेस एंड अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ एंड थिंक कि यार मेरे को नहीं आता। मेटामॉर्फिकल जो मीनिंग्स हैं, yes, they are confusing and sometimes it is difficult to apply, but it's okay, but we should learn them. So probably in some cases we can apply them. To be honest, yes, आप हर केस में वो मेटामॉर्फिकल मीनिंग हमेशा नहीं समझ पाते, बट उनका एक फायदा होता है, जैसे हमने इस केस में देखा, सैडनेस लाइट फ्रॉम एन अनडिजर्व्ड एंड कन्वर्सेशन डिजायर फॉर सप्लाइंग। तो जब आप हैममेलिस का केस देखेंगे और आपको ये समझ में आएगा कि ये पेशेंट अपनी बुराइयां नहीं सुनना चाहता है, तो आपको भले रूब्रिक ना आए, पर आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, हैममेलिस में ऐसा रहता है कि उनकी अच्छी अच्छी बातें करो, सबलाइम हो, जिससे उनकी वो हो, उनको अच्छा लगता है। तो भले ही आप डायरेक्ट रूब्रिक ना अप्लाई कर पाए, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेमेडी आपको आ जाएगी, है ना रूपाली? ओके, so thank you everybody, thank you so many people for joining my FB live. Okay, thank you.